Yeah, hello students, welcome back. So today we are going to continue our chapter Optics Part 2 from the subject Physics of Standard FYJC Science. And today we are going to cover the major topics which are related to refraction and total internal reflection. Okay, so before moving to the next, let's do some recap what we have seen in the last, I can say, the lecture. We have seen that there is a reflection, there is a refraction. Okay, also we have seen optics having a dual nature, or I can say the light is having the dual nature, and the study of light in certain way to measure it, we call it as a optics. Okay, optics एक तरीका है to know the properties of light. Okay, now if we are talking about the light, light is always having dual nature. Okay, light के पास always क्या है, dual nature है, right? Light can always be in a, light can be in a particle nature or can be in a wave nature. So अगर मेरी light wave nature में है, then I am going to study all this phenomenon like reflection, refraction, interference, right? All these things I am going to study it. So out of those only few हमने last time देखे थे, like reflection and refraction. Okay, refraction का इतना detail में नहीं देखा था, but yes, we have studied the reflection in detail. Okay, so reflection is nothing but one of that phenomenon जिसमें incident light will fall on a transparent or any medium, okay, and it will get reflected with same as angle of the incidence, right? इसका मतलब क्या, the reflected ray का जो angle of reflection होगा, that always be equal to angle of incidence, okay, according to Snell's law. Okay, so that was my reflection. But reflection में भी क्या होता है, there are certain ways, because एक reflection अगर एक proper मिरर, जो प्लेन मिरर है, अगर उस पे गिर रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन का आउटपुट अलग आता है. इफ द प्लेन मिरर is having some curve, like plane mirror, not plane mirror exact, if the mirror is having some curve like convex and concave, so in that case also there will be a difference. Okay, so in all this scenario we have seen there are three types of mirror: plane, concave and convex. Okay, so ये तीनों I can say based on this mirrors, I will be able to find out some out, no, some I can say the outputs. जैसे हमने देखा था कि last time कि there was kind of a object, और ऑब्जेक्ट का बिकॉज ऑफ दिस प्लेन मिरर देयर वाज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट? उसके बाद उसका इमेज बन रहा था, देन एक पर्टिकुलर वेव, सॉरी, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो जो रेज आते हैं वो इन टर्म्स ऑफ आई कैन से द कॉनकेव इट विल कन्वर्ज, ओके, इन टर्म्स ऑफ कॉन्वेक्स इट इज डाइवर्ज, राइट? तो ये सारे चीजें हमने देखी थी इन टर्म्स ऑफ दोज लेंसेस. देन उसके बाद हमने देखा था कि अगर मुझे ये ऑप्टिक्स को मेजर करना है, देन द मेजरमेंट्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन सीखना जरूरी है, राइट? सो वी हैव स्टडीड द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जिसमें ये कहा गया है फर्स्ट वाज एवरी मेजरमेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम द पोल, ओके, जिसको हम बोलते हैं पी. ओके, सो एवरी आई कैन से apparatus और lenses और mirror will have a pole, ओके, जहां से सारी चीजें हम लोग मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देंगे. सो इट्स लाइक अ सेंटर और ओरिजिन ऑफ द मेजरमेंट. देन हमने देखा था कि द ऑब्जेक्ट, द रेज विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज अगेन द रूल ऑफ साइन कार्टेशियन, और आई कैन से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. एंड रेस्ट फोर जो थे, लाइक अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो तो यू हैव टू मेजर दोज मेजरमेंट्स एज अ पॉजिटिव. अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो तो यू हैव टू मेजर दोज मेजरमेंट्स एज अ नेगेटिव. अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो, विच वी कॉल्ड इट एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो, सो वी हैव टू टेक इट एज अ पॉजिटिव. अगर आप नीचे मेजरमेंट कर रहे हो, सो वी हैव टू टेक इट एज अ नेगेटिव, राइट? सो ये जो 6 हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस देखे थे, so those are very important to carry forward this optics. Okay, it means measurement of phenomenon of light with respect to their measurements. Okay, now in today's topic we are going to simply focus on the main topic, which is we call it as a refraction. Okay, so refraction का मतलब क्या होगा? देखो,
रिफ्रैक्शन यहाँ पे इट्स नथिंग बट अ बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट इज एंटर्स अ मीडियम वेयर इट्स स्पीड इज डिफरेंट। ओके, इसका मतलब क्या कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्यों होता है ये उन्होंने एक लाइन में बताया है, राइट। सो यू कैन सी हियर दिस इज द एंगल ऑफ, सॉरी दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, सो ये जो रेड में है वो है मेरा इंसिडेंट रे, एंड दिस इज वी कॉल्ड इट एज अ, आई कैन से द इंटरफेस। ओके, ये जो मेरी ब्लैक लाइन है उसको मैं बोलूंगा इंटरफेस। तो आप सोच रहे होगे कि इंटरफेस क्या होता है। देखो, इंटरफेस का मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन जो दो मीडियम को अलग करती है, उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। ओके, सो दिस लाइन वी कॉल्ड इट एज अ इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वाटर मीडियम। ओके, विच इज वी कॉल्ड इट एज अ बाउंड्री ऑफ बोथ द मीडियम। ओके, इसके ये साइड वाटर है, इसके ये साइड एयर है, ठीक है। नाउ देर इज अ नॉर्मल, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू माई इंटरफेस। ओके, or perpendicular, or I can say it's a nothing but a normal which is having 90 degree with the interface. Then I have a incident ray. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि there is a incident ray. Incident ray when it is allowed to fall at some point, तो वो point को बोलेंगे हम लोग origin या O. Okay? और ये point पे ही मैं क्या करूंगा, मेरा normal draw करूंगा. After incidenting this particular incident day, then after उसके बाद क्या हो जाता है, there is a this particular incident ray will get convert into two rays. Okay, एक होता है मेरा partial reflected ray, दूसरा होता है मेरा partial refracted ray. Okay, because this particular water is not a complete transparent material. Okay, so therefore इसमें क्या होता है, आधी चीजें रिफ्लेक्ट होती है, आधी चीजें रिफ्रैक्ट होती है, राइट। यू माइट हैव सीन कि जब भी आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो आधी चीजें रिफ्लेक्ट होती है और आप सेम टाइम पे नीचे भी देख सकते हो, राइट। सो सिमिलरली हियर आल्सो इट इज हैपनिंग द सेम, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ जो हमने दिया हुआ है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये आई और ये एंगल ये दोनों का हमेशा के लिए सेम होगा। नाउ आते हैं रिफ्रैक्शन के पास। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना याद रखना। और ये जो हम मेजर करेंगे एंगल वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल होगा, कभी भी आप ये एंगल मेजर नहीं करना। ओके, सो दिस इज द रॉन्ग एंगल मेजरमेंट। द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ओके, देखो यहाँ पे भी रिफ्रैक्टेड रे का मैंने विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ही एंगल मेजर किया हुआ है। ओके, सो दिस इज वी कॉल्ड इट एज a refracted ray which is actually differ from its original path. So देखो एक्चुअल में ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहिए, but because of some change in the medium it is now moving in this direction. Okay, so आपको इसका सिंपल एग्जांपल बोलूं मैं, लेट्स से कि आप भाग रहे हो। ओके, लेट्स से कि यू आर रनिंग ऑन अ ग्राउंड। ओके, बिकॉज let's say for 100 meters there is no obstruction, आप सीधा भाग रहे हो, right? So obviously there will not be any, I can say, diversion in your running. Why? Because throughout the 100 meter the medium was same, that is air. Okay, आपके 100 मीटर में खाली एयर एक ही मीडियम था, बट जस्ट इमेजिन कि अचानक से आप भागते भागते आपके आंखों पे पट्टी है और आप भागते भागते स्विमिंग पूल में गिर गए, राइट। सो जैसे आप स्विमिंग पूल में गिरते हो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर रनिंग, सो आप पानी में भी भाग रहे हो, राइट। सो ऑब्वियसली और यू कैन ट्राई टू गो टू द नेक्स्ट एंड, बट द मोमेंट द मीडियम चेंजेस ऑब्वियसली क्या होगा, पहले तो आपके किस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एंड वेलोसिटी वी नो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑब्वियसली उसका रिजल्ट थोड़ा सा आपके डायरेक्शन पे भी होता है, राइट। सो द मोमेंट after completing 100 meter in a air medium immediately you fall into a swimming pool और आप वहां पे भी भागने की कोशिश करोगे, so हमेशा you will get deviated from your actual path. ओके, आप हमेशा क्या करोगे, आपके एक्चुअल पाथ से डेविएट होगे और थोड़ा सा टेढ़ा जाके आप स्विमिंग पूल के बाहर निकल के आप वापस भागना स्टार्ट कर दोगे, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग व्हेन इंसिडेंट रे इज coming from air and which is entering in the water. The moment it is again come out of the water, again it will follow its original path.
ओके और ये सारे चीजें क्यों हुई? बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ ऑप्टिकली रेरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके नाउ देयर इज अ डेंसिटी केम इनटू द पिक्चर. तो वहां पे एक रेरर मीडियम आता है, एक डेंसर मीडियम आता है. तो ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रेरर मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे एक पर्टिकुलर गिवन आई कैन से वॉल्यूम के लिए, बट सेम वॉल्यूम में अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ज्यादा मिलेंगे. So that's why this is optically denser as compared to air. Okay. So have you understood? This particular water is optically denser than air. If I am bringing a prism in picture, तो obviously prism ये water से भी क्या होगा? ज़्यादा denser होगा. Okay. So in this case, the incident ray is coming from rarer medium and it is trying to enter in denser medium. So whenever there is an incident ray of light is coming from rarer medium to denser medium, the actual path will get changed because the incident ray will get deviated, and that ray we called it as a refracted ray, and the angle which is created with respect to this normal we called it as a angle of refraction. Okay, and it is always happening from rarer to denser medium. ओके सो आप बोलोगे सर कि डेंसर टू रेरर मीडियम पॉसिबल है. यस इट इज पॉसिबल, बट देर आर सम केसेस जहाँ पे डेंसर टू रेरर जब भी कोई रे जाता है तो एक अलग फिनोमिनन आता है जो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं. राइट. सो यूजुअली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिजल्ट, सो इट्स ऑलवेज प्रिफर्ड कि हम रेरर टू डेंसर मीडियम में जाए. ओके एंड ये पर्टिकुलर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये पर्टिकुलर जो एंगल ऑफ आई कैन से रिफ्रैक्शन है, तो ये दोनों का जो रिलेशन है दैट रिलेशन इज गिवन बाय दिस स्नेल्स लॉ. ओके whereas n1 sin theta 1 will be equal to n2 sin theta 2. Okay, so यहाँ पे theta 1 will be this and theta 2 will be this, and n1 and n2 will be the refractive index of my medium. ओके सो आप बोलेगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में. ओके सो टिल दिस एवरीवन हैव अंडरस्टूड? जस्ट गिव मी यस और नो. ओके ओके जस्ट गिव मी यस और नो. ओके परफेक्ट. ओके classic. So till this I can see this is how the refraction take place. This is the phenomenon of light. Okay, so similarly ये refraction को अगर मुझे और डिटेल में स्टडी करना होगा then I need to check some few things related to those. Right. So abhi you can see here there is a term called as absolute refractive index. Okay, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? देखो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था दिस n1 एंड n2, एक्चुअली ये n1 एंड n2 को मैं बोल सकता हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका मतलब क्या? देखो बहुत सिंपल है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट गिवन मीडियम. तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके अभी देखो n विल बी इक्वल टू c अपॉन v. अभी आप बोल रहे हो कि सर ये c अपॉन v कहाँ से आया? c is nothing but my velocity of light in vacuum or air, and v is nothing but the velocity of light in given medium. तो हमेशा ये देखा गया है कि velocity of light in air or vacuum is always greater, which is 3 into 10 raised to 8 meter per second. But जब आप उसको मीडियम में देखते हो तो हमेशा उसका लाइट का जो स्पीड होता है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है. राइट. The same way as I told you, if you are running on a ground for 100 meters with the same medium, you will run with a constant velocity. But the moment you will fall into a pool, obviously your velocity will get change or differ. So in that case, मुझे क्या मिलेगा? There will be change in velocity because medium changes, velocity changes, right? So that's why अगर मुझे find out करना है तो ये तो मेरा हमेशा same होगा, right? सो अगर मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मीडियम ओनली,
अगर मुझे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो मुझे हमेशा n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा। ओके, क्यों? बिकॉज only and only in case of vacuum and air the velocity of light is maximum। ओके, तो ऑब्वियसली अगर मैंने वैक्यूम और एयर छोड़ दिया तो बाकी सारे मीडियम तो हमेशा डेंसर ही है एज कंपेयर टू वैक्यूम, बिकॉज देयर इज नो रेयर मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम। सो हेंस या मैं बोल सकता हूँ कि एन का जो वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 1 ही होगा। ओके, सो फॉर एनी मटेरियल मीडियम इंक्लूडिंग एयर, देखो अगर मैं वैक्यूम को भी एयर से कंपेयर करूं लार्जर स्केल पे, तो ऑब्वियसली वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, सो देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। But in air, yes, there are some molecules, so maybe there is obstruction. So for air also, the n value of n will be greater than 1. Okay, because c का value is highest और उसके नीचे जो भी मैं क्वांटिटी डालूंगा वो कम ही होगा हमेशा, तो ऑब्वियसली मुझे हमेशा 1 पॉइंट में ही आंसर मिलेगा। ठीक है, सो यहां से आई कैन, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर। ओके, या, so from here you can see for any light medium, sorry, for any medium, material medium including air, n will be greater than 1. Okay, and light travels fastest in vacuum than in any material medium. Medium having greater value of n is called optically denser। देखो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर मुझे n को समझना है तो ऑब्वियसली मुझे उसके मीडियम को समझना होगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स को उनके क्लासरूम में उनके परसेंटेज के हिसाब से जानते हैं कि हाँ ये बंदे को इतना हमेशा परसेंटेज मिलता है, ये बंदे को इतना हमेशा परसेंटेज मिलता है, दिस इज हैविंग द 80+ परसेंटेज स्टूडेंट्स एंड दिस इज 60+ परसेंटेज स्टूडेंट। सो वैसे ही यहाँ पे जो एन है वो डिसाइड करता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है। ओके, सो यहाँ पे n का जितना वैल्यू ज्यादा होगा ऑब्वियसली उतना वो क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर n1 and n2। n1 is nothing but my incident ray and n2 is nothing but my reflected ray। Okay, so here I can see n1 is nothing but my incident ray, sorry, n1 is nothing but my rarer medium, I can say of absolute refractive index, and n2 is nothing but my denser medium का absolute refractive index, and based on that only Snell's law came into the picture। Okay, so next topic आता है relative refractive index। पहले क्या था? हम लोगों ने देखा था absolute, मतलब absolute हमेशा individual medium के basis पे आता है, right? but relative हमेशा individual के basis पे नहीं आता, वो आता है relative के basis पे। मतलब क्या? The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in light v1 in medium 1 to its speed v2 in medium 2, right? इसका मतलब क्या? ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमेशा दो मीडियम के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे होगा। जैसे एग्जांपल ग्लास एंड आई कैन सॉरी एयर एंड ग्लास, और आई कैन से एयर एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर। तो ये सबका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। मतलब इसको हमेशा कैसे लिखते हैं? 1 and 2। ओके, सो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा? 1 and 2। इसका मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, हमेशा ऐसे मेजर करना। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is defined as the ratio of the speed of light of in I can say medium 1 to the speed of light in medium 2, or absolute refractive index of medium 2 divided by absolute refractive index of medium 1। so यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब दोनों के बीच में कॉम्बिनेशनल रिलेटिव इंडेक्स क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, right? So that I will get it from this। Okay, so for given pair of medium this relative refractive index is always constant। Okay, please remember this relative refractive index will always be constant।
सो देयरफॉर अगर आप उसको सॉल्व भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। n1 का c डिवाइडेड बाय v1 और n2 का c डिवाइड बाय v2, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो c विल गेट कैंसिल और v1 डिवाइड बाय v2 हो जाएगा, वेयर एज n2 डिवाइड बाय n1। सो ये n2 डिवाइड बाय n1 को ही मैं कैसे लिखूंगा, 1 n2। इसका मतलब पढ़ने के लिए आप कैसे बोलोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 will be equal to n2 divided by n1 will be equal to v1 divided by v2. Okay, understood this everyone? Just give me yes or no. Okay, yeah, I can see that. Okay, so here you can see now, okay, the illustration of refraction, मतलब एक्चुअल में ये पानी में अगर मैं देख रहा हूँ, लेट्स से कि इफ आई एम इंसिडेंटिंग रे फ्रॉम एयर टू वाटर, ओके, सो यहाँ पे उन्होंने एक आई कैन से एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस मे बी इम्पोर्टेंट फॉर आई कैन से द जेई। ओके, सो इलिस्ट्रेशन में उन्होंने ये दिया हुआ है, व्हेन seen from outside the bottom of water body appears to be raised and this is due to refraction of plane surface of the water in case and water, matlab the refractive index of water which is we call it the absolute refractive index of water will be equal to real depth divided by apparent depth। ओके, तो ये दो चीजों से भी हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अगर मुझे एज ए नॉर्मल, मुझे अगर पता नहीं है कि हाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम सॉरी इन वाटर क्या है, बिकॉज विच इज कांस्टेंट, बट आई डोंट नो, सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आल्सो आई कैन एबल टू फाइंड दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, तो सिंपल है, देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है, देन उन्होंने एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया, सॉरी एंगल ऑफ आर इन आई कैन से रिफ्रैक्शन इंडेक्स उसका ये है, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने देखा है कि ये एंगल थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। देन ए बी इज नथिंग बट माई डिस्टेंस आई हैव टेकन एंड अगेन ए इज नथिंग बट माई टोटल लेंथ जो यहाँ तक आ रही है। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन दे हैव फाउंड आउट कि बाय कंसिडरिंग आई एंड आर इज टू बी स्मॉल, मतलब ये जो आई है और ये जो आर है अगर मैंने उनको एक स्मॉल देखा तो 10r, मतलब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये 10r, मतलब टोटली यहाँ पे अगर मैंने उसको कंसिडर किया तो x डिवाइडेड बाय a, बिकॉज ये जो a है दैट विल बी, अगर मैं इसको लेट्स से मैं इसको अगर ये ज्वाइन करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे मेरा जो a होगा, मतलब दिस लाइन विल बी माई टोटल a। ओके, दिस लाइन विल बी माई टोटल a एंड दिस पर्टिकुलर लाइन विल बी माई x। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, x डिवाइडेड बाय a which is almost equal to sin r which is nothing but equal to 10r। okay, and 10i मतलब ये मेरा जो 10i, ये जो मेरा एक्चुअल रिफ्रैक्शन जो है which is happening from here, तो ये मेरा जो 10i है that will be equal to small x divided by this which is nothing but x divided by capital R which is nothing but this entire, because ये केस में मैं ये पूरा ट्राइंगल मेजर कर रहा हूँ। ओके, सो ये केस में मेरा ये जो r है दैट विल बी द एंटायर दिस r एंड दिस x विल बी द सेम। तो जस्ट मैंने n विल बी इक्वल टू साइन r डिवाइड बाय साइन i कर दिया, तो मुझे क्या मिला, x डिवाइडेड बाय a, x डिवाइडेड बाय r विच इज नथिंग बट r डिवाइडेड बाय a। इसका ही मतलब ये हुआ कि रियल डेप्थ, मतलब ये रियल डेप्थ मेरा इतना है और अपेरेंट डेप्थ विच इज नथिंग बट माई दिस, राइट। तो मुझे इससे भी क्या मिल सकता है, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई विल बी एबल टू फाइंड आउट। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिंपल, from here my incident ray is coming from here, it is going over here, so my incident ray will be like this, okay, and my refracted angle will be like this। okay, तो उसमें मैंने क्या किया, जस्ट आई नीड टू फाइंड आउट देयर आर टू ट्राइंगल्स, फर्स्ट ट्राइंगल तो ये है आई बी और लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया ओ, सॉरी इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से डी, बिकॉज यहाँ पे डी नहीं है, राइट, सो इसको मैं नाम दे दिया डी। सो आई डी बी और दूसरा मेरा हो गया ओ बी और लेट्स से यहाँ पे कैपिटल एक्स। ओके, तो ये केस में मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल को मेजर करके आई फाउंड आउट 10r एंड 10i, मतलब ही साइन r और साइन i, बिकॉज दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होता है इफ माई एंगल्स आर वेरी स्मॉल। So by having this formula sin r divided by sin I,
सो जस्ट मैंने वैल्यू पुट की तो मुझे क्या मिली, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय apparent डेप्थ. Okay, so by just knowing the real depth and apparent depth also, I will be easily find out the refractive index, or sorry, absolute index of my refractive index of my given material. So in this case water was there, hence I can easily find out the real depth, and by knowing the real depth and apparent depth, the water refractive index of water. Okay, yeah, so let's move to the next. Now here, till now what we have seen, that is the total, sorry, that is the complete refraction. Okay, but now we are going to see the total internal reflection. Okay, so again this is nothing but the phenomenon which was found, okay, when the operation was reverse. Okay, operation was reverse का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि earlier जैसे हमने देखा था कि we are only able to, I can say, able to incident the ray which we called as a angle ray of incident from rarer medium to denser medium, correct? But now here we have to move from denser medium to rarer medium, so now there is a change in the approach. Okay, so इसके पहले हमेशा हम optically rarer medium to optically denser medium में try करते थे कि मेरा ray enter हो, okay, ताकि मुझे angle of refraction मिल सके. But now there is a change in, I can say, the approach. What if अगर मैंने पर्टिकुलर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से अगर एक रे, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ओके, एंड दिस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तो ये इनिशिएशन कहाँ हो रहा है, मेरे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से हो रहा है. सो इफ आई एम गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर, यू कैन सी द एरो डायरेक्शन. if I'm moving from optically denser medium to optically rarer medium, so क्या होता है, so that we are going to see. Okay, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे, I can say, I would say they are giving so many examples कि अगर optically denser medium से अगर मेरा ये angle of incidence I1 है, okay, तो अगर ये optical सॉरी ये अगर इंसिडेंट रे I1 एंगल से अगर ये पर्टिकुलर इंटरफेस को टच कर रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी less than the angle of refraction because it is moving from optically denser medium to rarer medium. अगर ये rarer medium to denser होता तो angle of incidence will be greater than angle of refraction, but यहाँ पे उल्टा है. ठीक है, therefore I will be less, I1 will be less than R1. Similarly मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया. ओके, पहले एंगल क्या था, छोटा था, अब मैंने एंगल क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया. तो नाउ हियर I2 will be my angle of incidence. Again I2 will be less than R2. Yeah, I can say R2 will be greater than I2. तो obviously वो केस में क्या हुआ, मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ माई इंसिडेंस. ओके, बट एक पॉइंट ऐसे आता है, देखो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे ये पर्टिकुलर एंगल क्या हो रहा है, ये ऐसा ऐसा स्लोप होते जा रहा है. सो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये पर्टिकुलर जो लाइन है दैट विल कंप्लीटली रिलाई ऑन द इंटरफेस ऑफ माय मीडियम्स. ओके, सो दिस लाइन वी कॉल्ड इट एज अ इंटरफेस ऑफ माय मीडियम. सो जैसे ये पर्टिकुलर लाइन पे ये पर्टिकुलर मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो गिर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग रे. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग रे. ओके, तो ये याद रखना कि दिस माइट कम फॉर जेई, बिकॉज छोटे छोटे जो टर्म्स रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. सो दिस इज वी कॉल्ड एज अ ग्रेजिंग रे. ओके, या उसको हम बोलेंगे 90 डिग्री वाला रिफ्रैक्टेड रे. बट ये कब पॉसिबल होता है, एट सर्टन एंगल व्हेन दिस, I can say, incident ray is making on this particular interface. Okay, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट रे एक स्पेसिफिक एंगल क्रिएट करता है, और जैसे ही इसने स्पेसिफिक एंगल क्रिएट कर दिया, मेरा जो एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट टर्न्स इनटू अ 90 डिग्री. ओके, जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है. और ऐसा एंगल, ओके, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रिफ्रैक्शन का जो एंगल है उसको 90 डिग्री करता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल.
ओके, उसको क्या बोलना, क्रिटिकल एंगल, एंड इट्स डिनोट विद स्मॉल आई सफिक्स सी। ओके, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। सो आई सफिक्स सी इज नथिंग बट माई क्रिटिकल एंगल। और ये एंगल, क्रिटिकल एंगल कभी पॉसिबल है, व्हेन आई एम मेकिंग दिस इंसिडेंट रे टू फॉल ऑन दिस इंटरफेस विथ one particular angle at which my ray of refraction or refraction angle will be equal to 90 degree, or I can say that this particular refracted ray will be completely rely on the interface of two medium. So वो केस में मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो एंगल क्रिएट हुआ है एट इंसिडेंट साइड, उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ, sorry, I can say critical angle. So at critical angle the r will be equal to, or refracted angle of refraction will be equal to 90 degree. Again, it's a JE question, okay, or MCQ's question. So at IC, r will be equal to question mark, 180 degree, 90 degree, 45 degree, 0 degree. So always r will be equal to 90 degree. Okay, so ये लाइन मेरा ऐसे है. बट व्हाट इफ अगर मैंने एंगल और बढ़ाया विच इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो एंगल है वो और बढ़ा रहा हूं. इफ माई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द एंगल ऑफ आई कैन से क्रिटिकल एंगल, देन वो केस में अभी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बाहर जाने के बजाय वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा. ओके, एंड द मोमेंट इट इज कंप्लीटली, अभी ये क्या हो रहा है, देखो यहां से ही मेरा इंसिडेंट रे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से निकल रहा है, और एक पॉइंट के बाद there is no wastage or there is no reflection, there is no refraction is taking place, only total ray is getting, I can say, reflected internally only. The moment the total ray got reflected internally, उसको हम बोलेंगे total internal reflected ray. Okay, and this phenomenon will be knowing as a total internal, I can say, reflection, और उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में TIR. Okay, so now you can read this, it will be very easy for you to understand. When the angle of refraction becomes larger than 90 degree and the ray does not enter into rarer medium at all, but it's reflected totally into a denser medium, this phenomenon is called as total internal reflection. So that's why उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे टोटल बोला है. टोटल क्यों बोला है, बिकॉज थोड़ा भी परसेंट बाहर नहीं जाता, जो भी है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाता है, राइट. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट्स नथिंग बट अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, जब भी आपने पहले एग्जांपल्स देखे तभी आपने देखा था कि नॉर्मली वाटर में आधी चीजें रिफ्लेक्ट होती है, आधी चीजें रिफ्रैक्ट होती है, राइट. बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एक इंसिडेंट रे फॉल करूंगा विथ सम एंगल विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then the total ray will get reflected internally only. That phenomenon we called it as a total internal reflection. Okay, everybody understood this total internal reflection. Okay, तो total internal reflection होने के लिए I can say कौन सी चीजें जरूरी है. तो पहली तो चीज ये जरूरी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे शुड गो फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम. आप कभी भी ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में अगर आप इंसिडेंट रे भेज रहे हो तो कभी भी आप ये पर्टिकुलर फिनोमिनन नहीं देख पाओगे. ओके, सो इट हैज टू बी गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ये पहली आई कैन से कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन ये है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ, और आई कैन से क्रिटिकल एंगल. द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन ओनली मेरा जो रे है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, otherwise it will never get reflected internally. Okay, so these are the two basic, I can say, important factors or conditions जिसके बेसिस पे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. Okay, and this is a very important, I can say, the phenomenon which
you know which gives the idea about the rainbow. ओके, सो रेम्बो कैसे आता है, वो ये पर्टिकुलर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हमें पता चलेगा, ठीक है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ इट. ओके, so therefore total internal reflection needs two things. Again I am telling you, first it has to be moved from optically denser to optically rarer medium, and second the angle of incidence has to be greater than critical angle. Then only मेरा जो रिफ्लेक्टेड रहे वो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, और ये जो रिफ्लेक्ट जो एंगल से होगा दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज इट्स ए रिफ्लेक्टेड रे. ओके, so this TIR is very much important to understand. So let's see some examples on it. So यहाँ पे आप देख सकते हो, the mu is the relative refractive index of denser medium with respect to rarer medium. देखो यहाँ पे relative refractive index आ गया, इसका मतलब the refractive index of second with respect to one. So यहाँ पे second कौन है मेरा, the refractive index of denser medium with respect to rarer medium. So applying the Snell's law over here, okay, the critical angle of incidence IC can be written as in this manner. So this is the equation for critical angle. Okay, जो मैंने आपको बोला था, अगर आपको critical angle find out करना है, so just by knowing the value of the refractive index also आप ये critical angle find out कर सकते हो. So mu will be equal to sin 90 divided by sin IC. Therefore, sin IC will be equal to 1 upon mu. So from this equation, we can find out the critical angle. So IC will be equal to sin inverse of 1 upon mu. Okay. Now let's see the application of total interreflection. अभी मुझे पता है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर एंगल से अगर एक में इंसिडेंट रे फॉल कर रहा हूँ एक ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेरर मीडियम पे, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से पूरा रे क्या हो रहा है, मेरा ऑप्टिकल डेंसर में ही क्या कर रहा है, घूम रहा है, राइट. एंड दिस इज द रीजन दिस ऑप्टिकल फाइबर केम इनटू द पिक्चर थ्रू विच आई कैन सेंड or I can transfer or I can send a signal in terms of, I can say, light to a very long distance with minimum loss of energy, right. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि optical fiber is nothing but one of the best example of total internal reflection. अब day to day life में आप देख सकते हो कि नॉर्मली बाहर देर इज अ फ्लावर पॉट, ओके, और फ्लावर पॉट में देखो बीच में से नीचे लाइट होता है और उसमें से ऐसे बहुत सारे आई वुड से थ्रेड्स और फाइबर बाहर निकले हुए रहते हैं, और पूरे फाइबर के बीच में कहीं पे भी आपको क्या दिखता है, वो पर्टिकुलर वो ग्लो नहीं दिखते, ओनली एट द एंड ऑफ द टिप यू कैन सी दैट वो पर्टिकुलर चीज ग्लो कर रहे हैं. सो व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है. सो दैट इज नथिंग बट ऑप्टिकल फाइबर, अगेन दैट इज नथिंग बट अ फाइबर. सो बहुत सारे फ्लावर पॉट होते हैं, फिर वहां से हम लोग बाहर निकालते हैं, सो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द बॉटम दे यूज टू सेंड एंड देन बाहर जाके वो मुझे पूरे दिखते हैं, राइट. सो दिस इज नथिंग बट माई ऑप्टिकल फाइबर. सो थ्रू दिस लिटिल, so though it's little costly for initial setup, but optical fiber for communication is undoubtedly the most effective way of telecommunication by using electromagnetic waves. So how it works, so you can see here, अगर मैंने एक एंगल से इसको अगर एक भी मैंने अगर रे सेंड कर दिया, सो एवरी टाइम इट विल गेट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी, और वो बहुत लंबा सफर तय कर सकता है. ओके, based on that only they have given some more detail about this optical fiber. So ये जो center में है that is nothing but my actually मैं core बोल सकता हूँ which is a transparent core, okay, और ये जो उसके बाहर है वो है flexible cladding. So ये जो transparent core है वो है optically dense और ये जो cladding है वो है optically rare. तो जैसे मैं कोर के अंदर मेरा इंसिडेंट लाइट भेजता हूँ तो ऑप्टिकल डेंसर टू ऑप्टिकल रेरर में क्या होता है, उनका प्रोपोगेशन होता है, एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो ये पूरा रे मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाता है. एंड इट इज नॉट ओनली फॉर वंस, इट विल फॉर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड दैट्स व्हाई इट विल ट्रैवल. सो ऑप्टिकल फाइबर is essentially consist of an extremely thin, okay, slightly thicker than the human hair, transparent flexible core surrounded by optically rarer, which is nothing but smaller having refractive index, with flexible cover called as cladding. Okay, so ये मेरा जो cladding है which is optically rarer और ये जो मेरा core है which is optically denser.
ओके देखो इसका 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर का उन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इतना छोटा क्या होता है ये फाइबर होता है। ओके और ये बाहर का जो है अगेन दैट इज फॉर द बफर और जैकेट कंस्ट्रक्शन, मतलब जो अंदर की पीस को डैमेज ना करे। सो इफ यू सी मोर आई कैन से ऑप्टिकल फाइबर advantage, okay, right? First is for broadband, for TV signal, a signal optical fire can carry over 90,000 channels, okay, independent signal। देखो एक ऑप्टिकल फाइबर में इतने सारे 90,000 चैनल्स की बैंडविड्थ होती है, मतलब इतने सारे वो चैनल्स एक पर्टिकुलर केबल में वो फ्लो कर सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर। इम्यून टू EM इंटरफियरेंस, being electrically non-conductive and it is not able to pick up नियर बाय एनी EM सिग्नल, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफियरेंस होता है उससे टोटली क्या करते हैं ये इम्यून रहते हैं, मतलब इसके बाहर जो शील्ड होता है वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। लो एटेन्यूएशन लॉस, एटेन्यूएशन मतलब कम होना, ओके। सो इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम होता है, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि द लॉस इज लोअर देन 0.2 dB per kilometer, so that the single long cable can used for several kilometers. The electrical insulator, no issues with ground loops or metal wire or lightning, okay। so जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का कुछ आई कैन से फील्ड आता है तो ये पर्टिकुलर जो, बिकॉज सी यू नो दैट लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट विल जस्ट फ्लो। so that's why there is no I can say effect from this electrical insulators, matlab they are immune to that particular I can say noises. Theft prevention, it is also not used copper or other expensive material, it does not use the copper or other expensive material, so theft prevention is also there। usually क्या होता है कि अगर we know that this copper and expensive material बहुत costly होते हैं, so लोग इसको चोरी करते हैं and they used to sell it to outer markets, right। but यहाँ पे कैसे ऑप्टिकल फाइबर बहुत चीप होता है तो उसको उन लोग बेच मतलब निकाल के बेच भी नहीं सकते बिकॉज उनको बहुत कम पैसा मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट्स अ थेफ्ट प्रिवेंशन। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनल डैमेज इज मोस्टली अनलाइक, बिकॉज उसके ऊपर जो अच्छा शील्ड होता है और सिक्योरिटी भी बहुत हाई होती है, बिकॉज अगर कहीं भी मैंने उसको कट कर दिया सो आई विल नॉट गेट, मुझे समझेगा ही नहीं, बिकॉज उसको जो तरीके से मैंने उसको एनकोड किया है वो पर्टिकुलर रेस को, वो खाली उसका डिकोडर ही उसको समझ पाएगा। हेंस सिक्योरिटी इज फुल्ली सिक्योर्ड आई कैन से। देन देर इज वन मोर एप्लीकेशन कॉल्ड एज अ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप मतलब आप देख सकते हो कि बहुत सारे आई कैन से नीचे जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उसको पनडुब्बी बोलते हैं, राइट। आपने देखा होगा, राइट। तो उसमें यूजुअली इफ आई वांट टू सी एनीवन ऑन टॉप, राइट, तो उन लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मली उन लोग का ऐसा एक बाइनाकुलर नहीं बोल सकता हूँ मैं, हाँ सॉर्ट ऑफ बाइनाकुलर ओनली। सो एक बाइनाकुलर होता है और उसमें क्या होता है, उन्होंने ये ऑप्टिकल फाइबर लगाया होता है, right, and this is one of the use of that particular optical fiber I can see if there is someone on the I can say surface, okay। जैसे कुछ जहाज है अगर मुझे उसको देखना होगा तो ये पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर के पेरिस्कोप से I would be able to see that particular I can say जहाज, okay। Yeah, so we will cover this later, okay। So we will stop here, thank you student।